Right. So motion in a circle. First type of the motion, number one is the linear motion. Quick revision, linear motion. It's actually motion in which force and velocity are parallel to each other. So you have to remember these three words, force, velocity, they are parallel. So look at this example. Beta force, velocity in one direction, force and velocity in opposite direction, force and velocity again in one direction, this force against the direction. Here in the falling object, weight and velocity in one direction, and here, weight and velocity in the opposite direction. If force and velocity are in one direction, there is acceleration. If the force and velocity are in the opposite direction, there will be retardation, deceleration, but linear motion. So force, velocity, parallel to each other for linear motion. Next, a motion in which again force and velocity are changing their mutual angle. Neither they are parallel nor perpendicular, continuously changing angle. So look, first 90, then 60, and then suppose 20. Force is weight, velocity, force, velocity. And this is called helix motion, sometimes called parabolic, sometimes projectile motion. And the third most important for this is circular motion. And again, force and velocity, but now they are perpendicular to each. If force and velocity all time perpendicular to each other, that is called circular motion. So look, velocity is making tangent, force is acting toward the center. So this is circular motion. Okay, so the topic is motion in a circle. Now look at this. In this circle, if this is the point of rotation and the object is rotating in any direction, for example, it is rotating in this direction A to B. A से B की तरफ बेटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं. So while rotation, the disk is covering three distances. Number one is the length of arc, which is called the linear distance. Number two, the angle at the center of the circle, which is called angular distance and measured in radians. And number three, the displacement x from this reference line. अब बच्चे कहते हैं सर यार हमने तो पढ़ा हुआ है सर ए और बी भी shortest distance, this is the displacement. No, we have to measure displacement from the equilibrium lines. So this is the reference line. So इससे बेटा shortest distance ले लाया आपने. Now suppose the time taken is t from A to B, then linear distance over time is a linear speed. Angle divided by time is the angular speed. Displacement divided by time is the velocity. So V is equal to L divided by T. Theta divided by T is angular speed omega. And X divided by T is the velocity, which is vector. It has direction. Speed meter per second, velocity meter per second, but the angular speed radians per second. Next, now suppose from A to B, B to then C, C to D, and then back to A. One complete rotation, either clockwise or anti-clockwise. तो अब जो बेटा distance covered है linear, that is circumference. 2 pi r. Angle covered,
at the center of the circle is 360, but in radian, it's 2 pi radian, and the displacement becomes zero. And the time is called period, which is represented by capital T. So total distance divided by total time is the linear speed. Total angle divided by total time is angular speed. And zero displacement divided by time, velocity, mean velocity is nothing now. और बेटा पूरे टाइम के लिए आपने कैपिटल टी लिखना है, लेस देन वन रोटेशन स्मॉल टी. So circumference divided by period is velocity. Total angle 360 degree divided by t mean 2 pi radian divided by capital T is angular speed. Now this 2 pi over t is also here. इन दोनों को compare करें बेटा. So v can be written as 2 pi over t into r. So 2 pi over t angular speed, hence v is omega r. You can write v is equal to r omega, or you can write v divided by omega is r, mean the linear speed and the angular speed in a circle is the radius of the circle. तो रेशियो लेंगे अगर लीनियर स्पीड की और एंगुलर स्पीड की बेटा, the answer will be radius. And similarly, length of the arc is theta divided by 360 into 2 pi r. Theta divided by 360 degree into 2 pi r. But in A level, in this chapter, this 360 is replaced with 2 pi radian. So 2 pi cancel with 2 pi. So L is equal to r theta, or you can write S is equal to r theta. S is a arc length. So L is equal to theta r. L is equal to r theta, or L divided by r is equal to theta. तो यहां से बेटा रेडियन की डेफिनेशन मिलेगी. एंगुलर डिस्टेंस एट द सेंटर of the circle will be 1 radian if length of the arc is equal to radius of the circle. So this is the definition of radian. Now the next definition, angular speed, rate of change of angular distance at the center of the circle. You बेटा center of circle बच्चे भूल आते हैं, मार्क कट जाता है. Rate of change of angular distance at the center of the circle, which is completed or swept by the object, is called angular speed. लेकिन अगर आप distance to displacement लिखेंगे, then it becomes angular velocity. Rate of change of angular displacement at the center of the circle swept by the object is called angular velocity. लेकिन angular distance लिखेंगे तो angular speed की definition हो जाएगी. Next, this conversion. जब भी बेटा आपने convert करना है डिग्री को रेडियन में, फर्स्ट प्लीज राइट द फॉर्मूला. आप लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखे बगैर कैलकुलेशन करा जाते हैं. नो, मार्क मिलेंगे नहीं मिलेंगे बेटा. तो ये डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन. सो यू हैव टू शो दिस फॉर्मूला. उसके बाद बेटा सर्कल में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ फोर्स विच कीप्स द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन. और अगर वो पूछें आपको कैसे पता कि जनाब सर्कुलर आपके पास ऑर्बिट बनेगा, सर्कल ट्रैक बनेगा, तो आप साथ मेंशन करेंगे फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, hence track is circular. When force and velocity are perpendicular, then the track is circle. और centripetal force बेटा
डिपेंड करती है इन तीन फैक्टर पे, mass of the object, speed of the object, and radius of the circle. इसलिए इसका फॉर्मूला होता है F is equal to mv square over r. और ये कभी भी बैलेंस नहीं हो सकती. सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नॉट बी बैलेंस्ड. रीजन, because velocity is changing due to change of direction. आप सर्कल में मूव कर रहे हैं, बेशक स्पीड ना चेंज करें, एक ही स्पीड से सर्कल में मूव करें, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहे हैं ना. इसलिए डायरेक्शन चेंज की वजह से वेलोसिटी इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड. और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है फोर्स, दैट इज ऑलवेज अनबैलेंस्ड. सो सेंट्रीपिटल फोर्स का बैलेंस्ड होना आउट ऑफ क्वेश्चन है, कभी भी नहीं हो सकती. So this is centripetal. It is unbalanced. Newton's second law, unbalanced ma, m cancelled, centripetal acceleration. Now we have done that v is equal to r omega. तो ये पुट कर दें इसके अंदर बेटा v को. It becomes m r square omega square over r. One r cancelled. So this is another formula, m r omega square. This mr omega square, centripetal force, again unbalanced, equal to ma, m cancelled, r omega square, acceleration. Number 3, this mv square over r can be written as mvv over r. So just replace this last v with r omega, r cancelled. This is the third formula for the centripetal force when radius is not given. Both speeds are given, linear, angular, mv omega. It's unbalanced. m एक equal रखें, m cancelled. This is another formula. A is equal to v over m, v times omega. A is equal to v times omega. और ये तो बेटा all season formula ही है ना. A is equal to change in velocity divided by time. This is general formula. Next, sources of centripetal force. Number 1, gravitational force. It provides centripetal force. It becomes centripetal force. Like Earth orbits the sun. The sun और Earth के बीच में जो gravitational force है, that is becoming centripetal force. Number 2, electrostatic force. Means centripetal force. ये बन रही है बेटा. Electrostatic force mean electric force. कहाँ बेटा? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में centripetal force बन रही है. So electron is revolving. And the third, friction becomes centripetal force. कब बेटा? जब हम सरफेस के ऊपर टर्न लेते हैं. जब आप मोटर बाइक को टर्न देते हैं, कार को जब आप टर्न करते हैं, तो फ्रिक्शन इज द फोर्स which is becoming centripetal force. But the problem is जब फ्रिक्शन सफिशिएंट ना मिले, तो फिर हम क्या करते हैं? हम वेट के कंपोनेंट्स बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? लीन करते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉर्नर, और वो वेट का कंपोनेंट फ्रिक्शन में ऐड होता है और रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स मिल जाती है और हम टर्न ले लेते हैं. एंड नंबर 4, डीसी मोटर, एसी मोटर टर्न करती है, सेंटीमीटर फोर्स कौन देता है? मैग्नेटिक फोर्स. सो दीज आर द 4 sources of centripetal force: gravitational, electric force, friction, then friction plus component, and then magnetic force. अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. बहुत सारी टाइप्स होती हैं. तो जो एक टाइप आपके पास है, वो आप पेंडुलम को कोन की तरह अगर मूव करवाएं, पेंडुलम
horizontal circle in a conical pendulum, and it's case number one. Look, this is the pendulum. और इसको आप वेरी करते हैं बेटा, ये कौन बनती है, दिस वन. तो यहां चेक करें बेटा, योर पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड and this displacement is r, or angular displacement theta. This displacement is theta. This displacement is r. और जब टेंशन के आप कंपोनेंट्स बनाएंगे बेटा, दिस टेंशन, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट इज dx, which is balancing the weight, and this component is acting towards the center of the circle ty, so this is providing centripetal force. So tension is divided into two component. तो tx की जॉब हो जाएगी कि ये वेट को बैलेंस करेगा while रोटेशन, और जो ty होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो अब इसको हम बेटा यूज करेंगे dy को. ओके, so tx is weight and tx is equal to w. So t cos theta is equal to w, and ty component is providing centripetal force, so t sin theta is f. If the question is derive relation between centripetal and weight, तो क्या करें, ये t sin theta के ऊपर t cos theta डिवाइड करना होगा. तो t sin theta over t cos theta means centripetal force over weight, sin over cos, tan, t से कैंसिल बेटा. तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू W टाइम्स tan थीटा. F इज इक्वल टू W tan थीटा. इसको याद कर लें बेटा, क्योंकि अगली आगे जाएंगे केस 2 में ये जरा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. ओके, नाउ दिस centripetal force is providing this centripetal acceleration. तो इसको फोर्स को आप लिख सकते हैं बेटा mv स्क्वायर ओवर r. This W is equal to mg tan theta, m cancelled, so v square rg tan theta. So this is the formula for the linear speed in the conical pendulum. Derivation and calculation is key important beta. Now next, same formula, centripetal force W tan theta. तो अब सेंटीपिटल फोर्स ओमेगा की टर्म में लिखें एम आर ओमेगा स्क्वायर एम जी tan थीटा, m cancelled, r omega square g sin theta over cos theta. But look at this conical pendulum. ये बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है. If this is the radius length, तो यहां से लेकर यहां तक बेटा ये पेंडुलम की ओरिजिनल लेंथ. So perpendicular over hypotenuse, एंगल के सामने वाला ये रेडियस, perpendicular 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ, r over l is sin theta. So radius is equal to L sin theta. So R omega square is equal to G sin theta over cos theta tan. Radius is replaced with L sin theta omega square G sin theta over cos theta. So sin theta cancelled. It means omega square is equal to G over cos theta. So this is the angular speed formula. Linear speed formula is V is equal to RG times tan theta. And here omega is G over L cos theta. Now omega is equal to 2 pi over T. So omega is equal to 2 pi 1 over T F. So when this omega is replaced with 2 pi F, तो याद रखें बेटा, इस फॉर्मूला की वजह से ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, बट एक्चुअली इट्स एंगुलर स्पीड. But it is a product of 2 pi angle and frequency
That's why it's also called angular frequency. So frequency is different, but angular frequency omega is angular speed. So 2 pi f is equal to g over L cos theta. Hence, frequency of this conical pendulum is this. और अब बेटा अगर फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लें उल्टा करते हैं इसको 1/f पीरियड आ जाएगा so this is the expression for the period of this pendulum conical pendulum now important we have done that r is equal to L sine theta if the question is what is the maximum possible radius cos sine theta 1 maximum radius length की equal कब जब theta 90 हो लीनियर स्पीड आर जी tan थीटा मैक्सिमम कब होगी बेटा जब tan थीटा 1 पुट करेंगे मीन थीटा 45 होगी सो रेडियस मैक्सिमम व्हेन एंगल 90 linear speed maximum when angle 45 and look at the angular speed and this is maximum when the angle is 0 so 0 45 and 90 इन पे बेटा एक पे रेडियस मैक्सिमम एक पे स्पीड एंगुलर मैक्सिमम एक पे लीनियर स्पीड मैक्सिमम Now, same pendulum, but case number 2. Look at this. पहले बेटा एंगल हमने टॉप पे लिया था. Now, in the question suppose the angle is given at the bottom. This one. तो ये नहीं करना सर मैंने तो कर दिया था 90 minus theta सर एक ही बात है no. Now this component is dy and this component is dx. टेंशन के कंपोनेंट्स बनाएंगे बेटा. So Ty is equal to W. पिछले वाले में Tx W की इक्वल था. तो you have to proceed. आपकी कैलकुलेशन जो आपके पास है आगे चलानी है कैसे करेंगे डिपेंड करता है कि एंगल कहां बना हुआ है पहले चेक कर लें बेटा एंड T sin थीटा इज इक्वल टू वेट हेयर और वहां पे T sin थीटा सेंटीमीटर फोर्स थी now Tx is providing centripetal force mean T cos theta centripetal force तो अब फिर अगर रिलेशन बनाना है टी साइन थीटा टी कॉस थीटा तो वो पिछले वाले में क्या था F इज इक्वल टू W tan थीटा नाउ इट बिकम्स W इज इक्वल टू F tan थीटा चेंज हो जाएगा बेटा ये जरा चेक करें W इज इक्वल टू F tan थीटा बट इन दिस इट इज F इज इक्वल टू W tan थीटा डिफरेंस है बेटा और ये डिफरेंस आपने मेंटेन रखना है इसका नाउ द नेक्स्ट in previous r was L sin theta लेकिन यहां पे क्या होगा r is equal to L cos theta तो अब अगर हम पुट करते हैं बेटा W mg centripetal force mv square r into tan theta so m cancelled v square is rg over tan theta hence v is equal to rg divided by tan theta under root और इसके अंदर जरा चेक कीजिएगा बेटा इट वाज आर जी मल्टीप्लाई बाय tan थीटा अंडर एंड हेयर इट इज आर जी डिवाइडेड बाय tan थीटा अंडर रूट ख्याल रखना बेटा नाउ v इज इक्वल टू r ओमेगा तो इसी v के अंदर बेटा ये जो आपने v स्क्वायर लिया है आर जी और tan थीटा इसके अंदर v को बेटा आप r ओमेगा पुट करें तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर then rg divided by tan theta. So omega square is equal to 1 r cancelled. It is g divided by or omega square g over r tan theta. So g and r is L cos theta. Tan theta sine over cos, cos cancel. So omega square is equal to g over L sine theta. और वहां ओमेगा स्क्वायर क्या था g over L cos theta. So this is the formula for the omega. अब ये देखें g over L sin theta, but in this case
ओमेगा इज इक्वल क्यू और एल कॉस थीटा। एंगल चेंज करने से बेटा सब कुछ चेंज हो जाता है, आपने ख्याल रखना बेटा। ओके, देन ओमेगा इज 2 पाई एफ। So 2 pi f under root g over L cos theta means frequency is equal to 1 over 2 pi g over L sin theta, and the reciprocal of this time period 2 pi under root L sin theta over g. So this is horizontal circle in a conical pendulum. लेकिन दोनों cases एंगल टॉप पे बने, एंगल बॉटम पे बने, फॉर्मूला डिफरेंट ले लें बेटा, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो ये बेटा बीच में पेज ब्रेक है, एक ही समझें इसको। सर्कल, तो जब भी बेटा आप विल करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कल में, तो सबसे पहले उसको आप बेटा जब पकड़ के रख रहे होंगे ये, तो आप हाथ से कितनी फोर्स लगा रहे हैं यहां पे, जितना उसका वेट है। सो इनिशियली फोर्स आर रिक्वायर्ड इक्वल टू वेट, लेकिन रोटेट करना है तो आपको सेंटीपीटल फोर्स भी देनी पड़ेगी। सो इनिशियली weight plus centripetal force required to move in a vertical circle। तो इसलिए बॉटम के ऊपर जब आप स्टार्ट करते हैं, टोटल टेंशन इन द थ्रेड सेंट्रीपिटल प्लस वेट होगी। वाई वेट? टू होल्ड इट। वाई सेंट्रीपिटल? टू रोटेट इट। दोनों काम आपने करने हैं, आपने इसको होल्ड भी करना है, आपने रोटेट भी करना है, इसलिए आपने ही फोर्स लगानी है सारी। इसलिए टेंशन, रिएक्शन, टेंशन धागे में, रिएक्शन आपके हाथ पे कितना होगा, वेट प्लस सेंटीमीटर। और यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना बेटा, माइंड में आ जाता है सर सेंटीमीटर सर फोर्स देखें इधर लग रही है, वेट इधर लग रही है, सर आपने ये गलत नहीं कर दिया, ये ऐड कर दिया, नहीं, ये और सिचुएशन है। एक्चुअली वी हैव टू रोटेट इट, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अपोज कर रही है। तो जब भी आपने किसी चीज को मूव करना है और कोई आगे से अपोज करे, तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है, इसलिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी, वेट को ओवरकम करके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है। सो बोथ आर एडेड। तो ये एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लगा रहे हैं बेटा सेंट्रीपिटल से? क्योंकि हमने वेट को ओवरकम करना है, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स को तंग कर रहा है, अपोज कर रहा है। ओके, अब उसके बाद बेटा ये अगर ऑब्जेक्ट यहां साइड पे पहुंच गया, now weight is acting in this direction, centripetal here, both forces are at the angle of 90, और जब भी वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं, they are independent of each other, independent of each other। तो इसलिए यहां पे जो फोर्स आपने लगानी है जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये वेट ना अपोज कर रहा है ना सपोर्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल को, इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। सो at the left side, at the right side, tension, reaction is exactly centripetal force। लेकिन जब टॉप पे जाते हैं, तो look at the top, weight and centripetal both are in one direction। तो centripetal force is required, but weight उसका help out कर रहा है। तो डेफिनेटली जो आपके पास ये देखें सोर्स होगा, जो बंदा होगा, जो एजेंसी होगी, जो मोटर होगी, वो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे कोई मेरी हेल्प कर देगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए एट द टॉप सेंट्रीपिटल माइनस वेट, इतनी फोर्स आपने लगानी है। सो डू रिमेंबर, एट द बॉटम इट इज सेंट्रीपिटल प्लस वेट, at two sides left right it is just centripetal, and at the top it's centripetal minus weight। So the conclusion is tension in the string, reaction at your hand is not fixed, it's changing point to point। So tension is maximum at the bottom and minimum at the top, और दोनों साइड्स पे क्या होगी, वो एवरेज मिडल होगी। अब बॉटम पे टेंशन बहुत ज्यादा है, ऊपर जाते हुए टेंशन डिक्रीज करेगी, टॉप पे मिनिमम हो जाएगी, एंड देन इट इंक्रीजेस व्हाइल कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो इट्स नॉट कांस्टेंट।
सो मैक्सिमम टेंशन एट द बॉटम, इसलिए बॉटम जो होगा इज द मोस्ट लाइकली ब्रेकिंग पॉइंट इन द थ्रेड। और अगर स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है ऐसे रोटेट करते करते बॉटम पे पहुंच के ब्रेक, तो सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगी। इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेक्स्ट मोशन, तो यू विल राइट इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि ये जमीन के साथ ऐसे जाके लगेगा प्रोजेक्टाइल बना के। सो बॉटम इज द मोस्ट लाइकली ब्रेकिंग पॉइंट। उसके बाद बेटा अगर हम टॉप पे चल जाते हैं जहां पे मिनिमम टेंशन है, और टेंशन मिनिमम का मतलब है स्ट्रेंथ जो है वो तो आपके पास ढीला हो जाएगा, तो चीज गिर सकती है। तो इसलिए फ्री फॉल अवॉइड करने के लिए एट द टॉप यू हैव टू कीप टेंशन ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो की सूरत नहीं हो सकती, अदरवाइज इट विल फॉल। तो सेफ्टी के लिए टी ग्रेटर देन जीरो। लेकिन टॉप के ऊपर जो टेंशन है वो तो सेंटीपीटल माइनस वेट है, इसका मतलब सेंटीपीटल माइनस वेट हमें जीरो से ज्यादा रखना है। देन सेंट्रीपीटल वेट से ज्यादा होनी चाहिए एट द टॉप, अगर जीरो से ज्यादा रखनी है तो। दिस इज द फर्स्ट सेफ्टी। उसके बाद बेटा सेंटीपीटल अगर एम वी स्क्वायर ओवर आर है, वेट एम जी है, वी स्क्वायर ओवर आर ग्रेटर देन जी। और अगर आप वी स्क्वायर ओवर आर को स्पीड में कन्वर्ट करते हैं तो स्पीड आर जी अंडर रूट से ज्यादा रखें, नहीं तो गिर जाएंगे। और वी स्क्वायर आर एक्सेलरेशन होता है, मीन कीप एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, नहीं तो गिर जाएंगे। तो जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, एरोप्लेन हैं, दे आर फ्लाइंग ऑल द टाइम, दे आर एक्सेलरेटिंग एंड दे आर कीपिंग एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, अदरवाइज दे विल फॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं दे कांट मूव स्ट्रेट, दे आर मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ट्रैक। तो याद रखें बेटा, उड़ने वाली जितनी भी चीजें हैं सबकी मोशन सर्कुलर है, वो सर्कल में मूव कर रहे हैं। एरोप्लेन हो या फ्लाई हो, मक्खी हो, वो सीधी नहीं उड़ सकती, बिकॉज इट हैज टू कीप एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, सो इट्स मूविंग इन ए सर्कल। So thus, for the safety at the top, centripetal force must be greater than weight, acceleration must be greater than g, and your speed must be greater than rg under root. और ऑब्जेक्ट जो फ्लाई कर रहे हैं बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हैं एंड दे आर कीपिंग एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, अदरवाइज फ्री फॉल कर जाएंगे। इसका मतलब है कोई चीज स्ट्रेट फ्लाई नहीं कर सकती, और कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती, कांस्टेंट स्पीड तो हो सकती है। एरोप्लेन अगर सीधा जा रहा है सेम स्पीड है, इसका मतलब है वो सीधा तो जा रहा है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज द एरोप्लेन इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। और उसके बाद बेटा अगर वर्टिकल सर्कल में स्प्रिंग आपका रिजिड है, टेंशन एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं करेगी, इसलिए हो सकता है रेडियस कांस्टेंट हो। लेकिन कोई स्ट्रिंग रिजिड नहीं होता, कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है उसमें। तो अगर इलास्टिसिटी है, पेपर में मेंशन की हुई है, तो आपका परफेक्ट सर्कल कभी भी नहीं बन सकता, सर्कल कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। रेडियस एट द बॉटम ज्यादा होगा और टॉप पे स्मॉल होगा, नीचे रेडियस ज्यादा ऊपर कम। और अगर वो स्ट्रिंग हुक्स लॉ भी ओबे करेगा, तो जो नीचे जब टेंशन ज्यादा है बॉटम से, तो वी कैन रिप्लेस इट विद के ई हुक्स लॉ, फिजिकल के। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, के इज द मटेरियल कांस्टेंट ऑफ द स्ट्रिंग। वो कब कैलकुलेट करना है? बिफोर रोटेटिंग इट इन द वर्टिकल सर्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप के को बेटा रोटेट करने से पहले कैलकुलेट करो। और एक्सटेंशन कब लेनी है? वाइल रोटेशन, बट एट द बॉटम।
और वो कैसे निकालेंगे? रेडियस एट द बॉटम माइनस अनलोडेड लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। और उसके बाद बेटा इन 4 पॉइंट्स के बाद बॉटम, टू साइड्स, टॉप, कहीं और आ जाए बेटा पेपर में, सपोज दिस द पॉइंट पी, देन you will measure the angle of the position P from starting point, और ये starting point bottom वाला बेटा, इससे angle measure करेंगे। And then you will divide this weight into component। तो ये बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बैक पे होगा कंपोनेंट, दिस इज डब्ल्यू एक्स, और जो इस साइड पे जाएगा इधर नीचे, दिस इज डब्ल्यू वाई। नाउ लुक एट टू कंपोनेंट, ये डब्ल्यू वाई इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सो इंडिपेंडेंट। इसका मतलब सेंट्रीपिटल के साथ एफ डब्ल्यू वाई का कोई लिंक नहीं है, ओनली जो कंपोनेंट तंग कर रहा है वो डब्ल्यू एक्स है, इसलिए हमें इसको किल करना पड़ेगा। सो द फोर्स रिक्वायर्ड at the center or tension the string is wx plus fc, not w plus fc, and wx is w cos theta. So the tension or the reaction is W cos theta plus FC, but luckily it is valid for all points. For example, ये bottom ले लेते हैं बेटा, और यहां से एंगल देखते हैं इसका, तो वो जीरो है, cos जीरो पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यही फॉर्मूला। और यहाँ साइड पे पहुंचे, यहाँ से एंगल 90 हो गया, cos 90 पुट कर दें, W खत्म हो गया, TFC हो गया। और अगर टॉप पे जाते हैं, यहां से एंगल कितने हो गए? 180, cos 180 पुट करें तो माइनस डब्ल्यू, ये टॉप वाला फॉर्मूला होगा। दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। करना क्या है? जस्ट बाय द एंगल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन द बॉटम लाइन, और इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, यू विल कैलकुलेट द टेंशन। So this is chapter 1। अब इसमें एक चीज ऐड करें, if the object is moving straight, then it loops the loop। तो याद रखें बेटा, यहां पे जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें से ये mgh सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी बन गई। So the formula is kinetic energy at the bottom is equal to mgh gained plus kinetic energy at the top। तो अगर आपको वो कहे कि यहाँ टॉप पे आपने स्पीड निकालनी है, तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू विल कैलकुलेट स्पीड। और आपको कहे यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, तो यू विल अप्लाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। बी ये हो जाएगी, रेडियस ये हो जाएगा, मीन हाफ हाइट ऑफ द सर्कल। और अगर वो कहे कमेंट करें, इफ द आंसर इज कमिंग ग्रेटर देन जी एट द टॉप, तो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन कांटेक्ट विद द ट्रैक। और अगर ए लेस देन जी हो जाए, तो आप कहेंगे एट द टॉप एक्सेलरेशन लेस देन जी, सो इट विल नॉट कंप्लीट द लूप, इट विल फॉल डाउन। So this is chapter 1। Now move to next, gravitation। तो बेटा 2025-26 onward, gravitation field definition उसकी बेटा, region around a neutral object। रीजन अराउंड मैंने यहां इसलिए नहीं लिखी बेटा कि हर 2 साल के बाद वो उसके पॉइंट्स बदल देते हैं। सो फॉर योर एग्जाम, region around a neutral object in which force is experienced per unit mass at a point। I repeat, region around neutral object in which force experience या attractive force experience per unit mass at a point
is called gravitational field. अब आ जाए पॉइंट मास। तो जब भी बेटा दो ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस दूर हों और वो एक्स उन दोनों के डायमीटर से बड़ा हो, साइज से बड़ा हो, तो दे आर कॉल्ड पॉइंट मासेस। और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा अट्रैक्शन वाली फोर्स होती है, एंड विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव एंड इट इज ड्यू टू न्यूट्रलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन ड्यू टू देयर masses, उनके masses की वजह से। और इसकी बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gravitational force is directly proportional to product of two point masses. बच्चे मिस कराते हैं point sir, product of two masses. No, point masses, because it is valid only when we will consider point masses and inversely proportional to square of the distance from their center. तो बेटा gravitational force डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द masses, इसलिए दोनों masses के ऊपर फोर्स सेम लगेगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, मीन अगर डिस्टेंस डबल करेंगे ये 1/4 हो जाएगी। So due to the product of the masses, both will experience same size. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से ये बेटा ये डिस्टेंस के साथ सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है, एंड दिस रिलेशन इज यूजुअली कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जब आप इसको इकट्ठा करेंगे बेटा, F3 द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट m1 m2 पर d स्क्वायर। So force of gravitation, this is universal gravitational constant and its value will be given this one। और ये है क्या बेटा, इसको अगर सब्जेक्ट बनाएं तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses, और सबका मास यूनिट मास होना चाहिए। पहले तो होता था इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट masses ईच ऑफ 1 kg। अब 1 kg नहीं लिख सकते बेटा, 2024 तक था each of unit mass placed not 1 meter, unit length apart from their center. So it is a force of attraction between 2 point masses, each of unit mass when placed unit length apart from their center. तो अगर आपके पास बेटा 1 1 kg की चीजें हैं, 1 मीटर दूर रखी हुई हैं, और वो आइसोलेशन में हैं, कोई और तीसरा उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो जितनी फोर्स से वो अट्रैक्ट करेंगी दैट्स अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये प्रोडक्ट के साथ बेटा डायरेक्टली और डिफरेंस के साथ इनवर्सली। और ग्रेविटेशन लॉ कब लगेगा, व्हेन इट इज अज्यूम्ड दैट पॉइंट masses। अजम्पशन करेंगे तो वो फिट आएगा। अब बेटा जनरली हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट कह देते हैं, ओके। ये ठीक भी है और ये गलत भी है, कहीं ठीक है, यहीं गलत है। चलें जनरल बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अभी पढ़ा था बेटा, इट्स G m m/r², m1 m2 over distance square। And why distances are, because the object is placed at the surface, object is placed at the surface। तो अब बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पे है, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, ये d रेडियस के इक्वल प्लस से छोटा सा x। तो इसलिए बेटा r प्लस x को आप r ही कह लें, इसलिए मैंने r लिख दिया, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सरफेस। और वेट क्या है बेटा, mg, mm से कैंसिल करें, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द g, और यू कैन राइट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड द कैपिटल G। तो क्वेश्चन है, अगर drive relation between gravitational field strength and universal gravitational constant, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी प्रूव करना आ सकता है। And this G, universal gravitational constant,
और ये एम जो है ये बड़ी चीज का है, क्योंकि हमेशा अट्रैक्ट जो आपके पास फोर्स की डोमिनेंट होती है वो बड़े की होती है. सो एम स्मॉल इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड. Mass of the planet capital M, distance is R. Why distance is R? Because the x is very very small as compared to the R. is the R plus x को हम क्या कर रहे हैं बेटा? G. ये R लिख रहे हैं. So this is the formula between small g and capital G. Okay. Now if this object is lifted above the planet, अर्थ ही समझ ले बेटा. तो फॉर्मूला तो ये आपने पढ़ा. अब डिस्टेंस को R नहीं लिख सकते. So G is constant. M is constant. तो ये दो वेरिएबल हो गए. इट मीन G is inversely proportional to D square. ऊपर जाएंगे G की वैल्यू कम होती जाएगी. नंबर टू. लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे नो द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इनसाइड द प्लैनेट, तो भाई ऑब्जेक्ट अगर आपने यहां जाके रख दिया है, तो आप यहां याद रखें बेटा सिर्फ वो मास अट्रैक्ट करता है विच इज रिमेनिंग टूवर्ड द सेंटर. ये बाहर वाला जो मास होगा ये अर्थ का हो कोई और चीज अट्रैक्ट नहीं करता. आप अगर अपने बेडरूम में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, तो नीचे जो मास है अर्थ का वो सारा अट्रैक्ट करेगा. तो आप अगर देखें छत वाली साइड पे तो वो सीलिंग आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती. मास इफेक्टिव कौन सा होता है? विच इज कंसंट्रेटेड सफेरिकली टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको मैंने शेड किया हुआ है. And this mass can be calculated by the formula density into volume. अब हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर गए हम यहां तक, तो डेंसिटी कोई खास चेंज नहीं हुई. हालांकि चेंज होती है. नीचे वाटर है, ऑयल है, गैस है, मोल्डन फॉर्म में लावा है, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं डेंसिटी इससे. एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस spherical shaded part, its radius, इसको मैंने स्मॉल आर कह दिया. सो डेंसिटी 4/3 πr³ मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज सफेयर जो है उसका वॉल्यूम ये होता है. तो आप पुट करें उसी फॉर्मूले में जी. नाउ दिस मास इज द न्यू मास विच इज इफेक्टिव. इस मास को पुट करें बेटा ρ/4/3 πr³ ओवर आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, एंड दैट्स आर स्क्वायर. अब ये इससे कैंसिल करें. सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन यू आर इनसाइड द प्लैनेट. तो अब बेटा 4/3 π ρg कैंसल्ड, इसलिए इनसाइड G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मींस, सॉरी, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D. तो बाहर फिर रहे हो अगर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर. और आप अंदर अगर हैं तो आप भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D लेंगे बेटा. और क्वेश्चन आ जाए स्केच द ग्राफ G अगेंस्ट D. तो हम सेंटर ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करें, जीरो डिस्टेंस, ऊपर की तरफ चलें. जब तक सरफेस पे पहुंचते हैं तो डिस्टेंस बन जाता है बेटा रेडियस. यू आर इनसाइड डायरेक्ट. और सरफेस से बाहर जाएंगे जी यूनिवर्सिटी क्वोशंट. सो कर्व. और मिस्टेक नहीं करनी बेटा, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाना, इसको टच नहीं करवाना एक्स एक्सिस को. और अगर आपने यहाँ पे टच करवा दिया, मार्क कट जाएगा. और याद रखें ये ग्राफ उस वक्त है व्हेन यू आर टेकिंग योर प्लैनेट आइसोलेटेड. दिस इज द जी ऑफ द आइसोलेटेड प्लैनेट. रिजल्टेंट का और का ग्राफ होगा, वो आज बाद में बनाएंगे कि मून और अर्थ का रिजल्टेंट बनाए, वो और होगा. और वो हो सकता है ये टच करे वो वाला, ये नहीं करना. आइसोलेटेड का जी टच नहीं करेगा. तो आइसोलेटेड का जी सिर्फ कहां जीरो होता है? एट द सेंटर. बाहर कहीं जीरो नहीं होता. नाउ द नेक्स्ट, आवर प्लैनेट अर्थ, ये बेटा ऑर्बिट करती है सन को और स्पिन करती है अपने वर्चुअल एक्सिस को. तो सपोज करें स्पिन पे आ जाएं. ये हमारी अर्थ है, ये पोल्स हैं, तो यहां से स्पिन पास कर रहा है. जैसे ग्लोब पड़ा होता है तो आप उसको घुमाते हैं, वो स्पिन कर रहा है बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, एक टॉप एक बॉटम. तो अर्थ स्पिन्स, एक्सिस जो है बेटा वो पासेज थ्रू द पोल्स होते हैं.
और जब ये स्पिन कर रही होती है तो इसकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है और इसका पीरियड 24 आवर्स होता है। ये नहीं दिया होगा, ये दो चीजें याद रखनी है आपको। अब अगर हम अर्थ की सरफेस पे बैठे, द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज टू जॉब। हमें फॉर्मली उसने पकड़ के रखा हुआ है और नंबर टू, अर्थ की स्पिन के साथ हमें मूव भी करवा रही है। तो हमें फर्मली पकड़ के रखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू माई वेट, और अपने साथ हमें स्पिन करवा रही है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। इसलिए मेरे और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। वेट टू होल्ड द ऑब्जेक्ट, सेंट्रीपिटल टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। बट अगर बेटा हम पोल पे जाके बैठ जाए, तो हम एक्सेस के ऊपर बैठ गए। तो एक्सेस के ऊपर बैठेंगे तो योर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस लाइन, पिवट लाइन, इज जीरो। नो टॉर्क, नो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड। तो अगर पोल पे जाके बैठेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज देयर इज नो रेडियस ऑफ द स्पेन, देयर इज नो टॉर्क ऑफ द स्पेन। इसलिए पोल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वेट की इक्वल होती है, जो भी हम कर रहे थे, इसके अलावा कहीं नहीं वेट की इक्वल होती है। If the question is state the point at which gravitational force exactly equal to weight, that's a pole. You can write North Pole, you can write South Pole. Okay. So the force of gravitation, G, mass of the object, mass of the planet, surface की वजह से distance कितना होगा सेंटर से, जितना रेडियस है. So mg, we are talking about the pole, so mg at the pole, ये m कैंसिल करते हैं बेटा, तो पोल के ऊपर जो g होती है उसका ये फार्मूला है. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को आप इक्वेटर पे ले आते हैं, यहां पे इट हैज डिस्टेंस दिस वन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट लाइन, तो फिर बेटा अब सेंटीपीटल जीरो नहीं होगी. सो एट इक्वेटर, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द वेट, बी एट द इक्वेटर, सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इसलिए मास ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, प्लैनेट का नहीं बेटा. अब सबके अंदर बेटा ऑब्जेक्ट का मास एम कैंसिल करते हैं, so this gm over r square is equal to g at the pole. This is g at the equator. It's r omega square. Centripetal acceleration. इसका मतलब इक्वेटर के ऊपर g पोल वाला, वो इक्वेटर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल होता है. दोनों इक्वल नहीं होते. g की वैल्यू पोल पे और इक्वेटर पे और, इक्वेटर पे कम होती है. जब तक उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐड नहीं करेंगे, पोल की इक्वल नहीं. और जब भी आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, तो पोल के ऊपर जी माइनस एट दैट पॉइंट जी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट सेंट्रीपिटल आ जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ द पोल हमेशा बड़ी होती है और बाकी जगहों पे कम होती है, जैसे कि इक्वेटर पे कम है. तो जी एट द पोल इज ग्रेटर देन जी एट द इक्वेटर. अब जी को मास से मल्टीप्लाई करते हैं, एम जी बिकम्स वेट. तो वेट पोल पे ज्यादा होता है बेटा और इक्वेटर पे कम होता है. पोल पे ज्यादा, इक्वेटर पे कम, उसी ऑब्जेक्ट का, हालांकि मास तो सेम होगा हर जगह पे. अब दोनों जगह हो बेटा, पोल पे बैठे हों या इक्वेटर पे बैठे हों, आप अर्थ के अंदर बिल्कुल नहीं है. आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, जो अभी पढ़ा था. अब बाहर है तो यू हैव टू अप्लाई जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. और सरफेस पे बैठे हैं तो डी किसकी इक्वल है, रेडियस. इसलिए अगर जी पोल पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, तो रेडियस पोल का कम होगा, इक्वेटर का ज्यादा होगा, बिकॉज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. तो इसलिए प्रूव हो गया कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट सफेयर. पोल बेचारे का रेडियस छोटा होता है, इक्वेटर कम. इट्स ओवल शेप, इट्स एग शेप. दिस इज द प्रूफ.
ओके, नेक्स्ट, सेकंड मोशन, ऑर्बिट। अब अर्थ जो है बेटा ये ऑर्बिट कर रही है अराउंड द सन, और सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 10^8 किलोमीटर्स, या आप कैलकुलेशन में पुट करेंगे 1.5 इंटू 10^11 मीटर्स। तो अब बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सन और अर्थ के बीच में है, दैट इज डिवाइडेड कैसे, अर्थ को उसने पकड़ा हुआ है तो अर्थ का वेट प्लस अर्थ को ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो सेंटीपीटल, तो ये वेट भी अर्थ का है और सेंटीपीटल फोर्स भी अर्थ की है। बट वेट अर्थ का अगर आप लेंगे तो W = mg, अर्थ के वेट के लिए बेटा मास ऑफ द अर्थ लेना पड़ेगा लेकिन जी ऑफ द सन लेना पड़ेगा। जैसे W = mg, m हम अपना डालते हैं और जी अर्थ की डालते हैं, तो सिमिलरली अगर अर्थ का वेट चाहिए तो मास अर्थ का जी सन का, लेकिन ये तो बहुत दूर है, सन की जी तो अर्थ पे पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि जी ऑफ द सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, नेग्लिजिबल है, तो अर्थ का वेट किसी काम का नहीं है। तो ऑर्बिट के अंदर अर्थ का वेट इग्नोर करेंगे बिकॉज वेट ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू जी ऑफ सन, और सन की जी ऑर्बिट के अंदर इतने दूर नेग्लिजिबल है, जीरो नहीं कहना, नेग्लिजिबल। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट ऑफ द अर्थ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द अर्थ, ये नहीं चाहिए, है ही नहीं। सो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिकमिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर वो पूछें ऑर्बिट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो अब ये वाली इक्वेशन जो है बेटा, इसमें मास ऑफ द अर्थ दोनों साइड पे कैंसिल कर दें, इस आर को इधर नीचे ले आए, तो दिस इज, so angular speed of the object in the orbit is omega √g/r³। लेकिन याद रखें बेटा, उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं लेना, प्लैनेट का मास लेना है, स्टार का मास लेना है जिसके अराउंड वो घूम रही है। और अगर ओमेगा को आप बेटा 2π/t पुट कर देंगे, अंडर रूट स्क्वायर कर लें, 4π² /t², ये बनेगा। और जब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड, और t², 4π²/gmr³। अब दिस इज कांस्टेंट, इसलिए टाइम पीरियड स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। जितना रेडियस आप बढ़ाते जाएंगे बेटा, पीरियड बढ़ता जाएगा। ओके, अब अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स ये पुट कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा की बजाय mv²/r अर्थ की पुट करते हैं, मास ऑफ द अर्थ, स्पीड ऑफ द अर्थ। अब ये मास ऑफ द अर्थ कैंसिल करें, जी मास ऑफ द सन, और ये एक आर कैंसिल करते हैं, आर v², तो ये ऑर्बिट में स्पीड हो जाएगी। तो ऑर्बिट में स्पीड होती है v = gm/r²। जिसकी स्पीड है उसका मास नहीं पुट करते। और यहां स्पीड से फिर आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं अर्थ की, तो 1/2 मास ऑफ द अर्थ gm/r। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया इन द ऑर्बिट। और इस फॉर्मूले को ये जो है t², कभी कभी केपलर्स लॉ भी लिखा होता है। नेक्स्ट, सन स्टार है, उसको अर्थ ऑर्बिट कर रही है, लेकिन अर्थ तो थर्ड ऑर्बिट में है। टोटल 8 ऑर्बिट्स हैं अराउंड द सन। तो अब अगर दो ऑर्बिट्स का क्वेश्चन आ जाए, तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर बेटा जो ओमेगा होगी, gm/r⁴ ओमेगा 1²। So you can write it gm is equal to ओमेगा 1² r⁴, and in the second, ये बेटा, so you can write gm r⁴ ओमेगा 2²। तो देखें, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए,
लेकिन ये दोनों साइड्स लेफ्ट वाली की तो इक्वल हैं। इसका मतलब अगर आपका प्लैनेट्स दो डिफरेंट हैं और उनका जो है सन वो सेम है, ये जैसे अर्थ आप कह रहे हैं ये मार्स है, तो फिर इनको आप कोरिलेट करें, कंपेयर करें, तो ये आपके पास बेटा रिलेशन बन गया ओमेगा और आर का। और ये कहाँ वैलिड और हो सकता है? जैसे मार्स के दो मून्स हैं, नेपच्यून के बहुत मून्स हैं, 100 मून्स भी हैं कई प्लैनेट्स के। तो जब भी बेटा एक ही प्लैनेट के दो ऑर्बिट, एक ही स्टार के दो ऑर्बिट आप कंपेयर कर रहे होंगे, सो दिस इज द फॉर्मूला, मीन ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी एंगुलर स्पीड कम होगी। अब बेटा हमारा मून जो है ये सिंगल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। अगर पूछें व्हाट इज मेंट बाय मून, नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट, दैट्स इट। और उसके बाद बेटा बाइनरी स्टार्स, ये बेटा स्टार्स का एक ग्रुप होता है, पेयर होता है, और इसमें दो स्टार्स हैं बाइनरी जो हैं, और वो एक कॉमन सेंटर को, कॉमन मास को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। वैसे तो मार्स और अर्थ भी कर रहे हैं, सन को कर रहे हैं, लेकिन और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, और आपस में भी वो बाउंड होते हैं, दे आर बाउंड टुगेदर बाय ग्रेविटी। उनको बाइनरी स्टार्स कहेंगे, लेकिन दे हैव सेम एंगुलर स्पीड, they have same period, frequency, centripetal force, और ये भी याद रखें उनके बीच में डिस्टेंस भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। So both stars orbit in the same direction with same period and maintain their mutual distance. तो दोनों की सेंट्रीपिटल फोर्स सेम होती है। ये कॉमन सेंटर है, ये अगर इधर घूम रहा है तो ये भी इधर ही घूम रहा है, और जब ये यहां पहुंचेगा तो ये इधर पहुंचे होगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये यहां पे होगा। आप पहले का आपके पास देखें, सेंटीपीटल फोर्स M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कैंसल, ये रेशो हो गई। मतलब जिसका मास बड़ा उसका रेडियस छोटा, तो देखें छोटे वाला जो आपके पास है ये दूर है रेडियस, और बड़े वाला क्लोज है। ये सिस्टम कहलाता है बाइनरी स्टार्स। अब बेटा नेक्स्ट, अब सरफेस के ऊपर, किसी भी प्लैनेट की सरफेस के ऊपर बेटा, हमने जो जी ली थी उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था Gm/r², और इसको हमने ये लिखते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्बिट में चले जाएं, सन, उसके इर्द गिर्द कोई प्लैनेट है, तो वहां पे अगर एंगुलर स्पीड देखें तो वो Gm/r³ अभी पढ़ा था। तो यहाँ पे जो Gm है बेटा, दिस इज R³ ओमेगा स्क्वायर। तो ये Gm और ये भी Gm, इन दोनों को कंपेयर करें, तो ये राइट साइड इक्वल पुट करें बेटा, तो ये जरा देखिएगा, अगर इक्वल पुट करेंगे ये दोनों, ये दोनों इक्वल करने से ये हो गया, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द सन एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट अराउंड इट। तो ये आर रेडियस ऑफ द स्टार और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अगर ये अर्थ है तो रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द मून, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, दिस इज द रिलेशन, और इसकी कैलकुलेशन आपकी। नेक्स्ट, अब बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, मैन मेड होता है, अर्थ को बेटा ऑर्बिट करता है, लेकिन स्पेशलिटी क्या है, एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर, और उस ऑर्बिट में ये मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद पीरियड ऑफ 24 आवर,
तो जब भी डेफिनेशन लिखनी है यू हैव टू मेंशन दीज 3 पॉइंट्स, अदरवाइज नो मार्क. So satellite located exactly above the equator, moving from west to east with a period of 24 hours is called geostationary satellite. अब अर्थ भी बेटा वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इसका पीरियड भी 24 आ रहा है, इसलिए ये अर्थ के रिलेटिवली अपीयर होता है स्टेशनरी, इसलिए जियो स्टेशनरी. और इसकी याद रखें बेटा, इस सैटेलाइट की स्पीड इतनी होती है, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करनी है, इसकी एंगुलर स्पीड इतनी होती है, और ये यूज होता है कम्युनिकेशन में विद स्मॉल लेटेंसी. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पोल के नियर जो रीजन है वहां कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. और अगर वो कहें कि कैलकुलेट रेडियस, तो इससे आपने हेल्प लेनी है बेटा. जी कांस्टेंट पुट करना है, मास ऑफ अर्थ पुट करना है, पीरियड 24 आवर पुट करना है, रेडियस हमेशा इतना आएगा. और अगर वो कहे सरफेस ऑफ द अर्थ से हाइट बताएं, तो वो ये आएगी, रेडियस सब ट्रैक कर लेंगे जी. और यहां देखें बेटा, ये जो बड़े वाला है बेटा, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और पोल भी कवर नहीं कर सकता, इसलिए पोल वाला ये ऑर्बिट है, ये वाला. अब जो पोलर सेटेलाइट्स होते हैं बेटा, वो पोल रीजन को कवर करते हैं, लेकिन उनका पीरियड बहुत थोड़ा होता है, 1.5 घंटे में पूरा डाउन ले लेते हैं. और जियो स्टेशनरी 24 आवर्स में. उसके बाद बेटा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें. मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन बता दी. तो इट्स अ रीजन इन विच, ये अब अराउंड द ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन इन विच gravitational force is experienced per unit point mass is called gravitational field. तो अब ये पॉइंट मास जरूर मेंशन करना है. ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉइंट मास, इतना भी काफी है. Gravitational force experienced per unit point mass is called gravitational field strength. और जब रीजन लिखेंगे बेटा, तो खाली ग्रेविटेशनल फील्ड की होता है. Gravitational force per unit point mass is called gravitational field strength, और वो जी होती है स्मॉल. और जी आपके पास बेटा एफ डिवाइड बाय एम. आप कहेंगे क्यों सर, बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एंड जी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय एम, एंड डब्ल्यू इज द फोर्स. और जब भी बेटा आपने ये ड्रॉ करनी है फील्ड लाइंस, तो कोशिश करें बेटा इक्वली स्पेस्ड हो, सरफेस के ऊपर ऐसा लगे जैसे परपेंडिकुलर हो बेटा, और एरोज इनवर्ड, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होती है. सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ओनली अट्रैक्टिव, so cannot be drawn as a resultant between two planets. जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं रिजल्टेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में हम इलेक्ट्रिक फोर्स बना सकते हैं, ऐसा रिजल्टेंट बना सकते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स रिजल्टेंट नहीं बना सकते, क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है. ऑल फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड at the surface and appear perpendicular to the surface. और फील्ड लाइन जो हैं, अगर आप उनको अंदर इस तरह एक्सटेंड करेंगे, तो एक पॉइंट पे मीट करेंगी, और ये एविडेंस है कि होल मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. और अगर वो शेप पूछें, तो शेप ऑफ दिस फील्ड इज रेडियल, मींस स्फेरिकली स्प्रेड आउट होती है. और उसके बाद बेटा, ये जो लाइंस हैं, वो इंडिकेट करती हैं path followed by the mass after experiencing force of gravity, force of attraction. और एरो बताता है बेटा
कि किस डायरेक्शन में उसकी मोशन होगी आफ्टर एक्सपीरियंसिंग फोर्स। और इसके गैप क्या बताएंगे बेटा? स्ट्रेंथ। स्मॉल गैप होगा तो स्ट्रांग फील्ड होगी। और उसके बाद बेटा जितने भी पॉइंट्स फील्ड के बाहर होंगे उनको इंफिनिटी पॉइंट्स कहेंगे। और अर्थ की सरफेस के पास जी की अगर वैल्यू देखनी हो तो आप देखें अर्थ आपको फ्लैट नजर आती है। क्यों नजर आती है? क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है। और जब फ्लैट नजर आती है और फील्ड लाइन तो परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए फील्ड लाइंस अपीयर होंगी परपेंडिकुलर सरफेस। और परपेंडिकुलर लाइन में इक्वली स्पेस्ड आपके पास होती हैं, इसलिए क्लोज टू द अर्थ सरफेस। कितना क्लोज? क्या लिमिट है? हाइट लेस देन आर। वहां पे आपने जी की वैल्यू कांस्टेंट लेनी है। लेकिन जैसे देखे ना एच लेस देन आर है तो ये फील्ड लाइन सारी ऐसे लगेगी कि सीधी बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल है। लेकिन अगर एच ग्रेटर देन आर होगा तो ये कर्वेचर नजर आएगा आपको बेटा, ये रेडियल शेप में नजर आएंगी। अब जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं ले सकते। उसके बाद बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो सबसे पहले ये आपके पास कोई प्लैनेट है, उसकी फील्ड है, फील्ड पॉइंट ले सकते हैं अंदर, बाहर पॉइंट इंफिनिटी होगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फोर्स लगती है, डिस्टेंस कवर होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जब डिस्टेंस कवर करती है तो वर्क होता है। इसलिए वर्क डन per unit mass in moving it from infinity to a field point is called gravitational potential। देखिए हमें काम कब करना पड़ेगा? जब इंफिनिटी पे चीज होगी फील्ड में लानी है, या फील्ड वाली को इंफिनिटी लेके जाना। यहाँ पे चीज पड़ी हुई अर्थ को अट्रैक्ट कर लेगी। और ये वर्क नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है अभी बताता हूँ जी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट मास इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू फील्ड पॉइंट, वर्क डिवाइड बाय मास, इसके यूनिट्स होंगे बेटा जूल्स पर केजी। अब इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होता क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट ही नहीं कर सकती फील्ड के बाहर। लेकिन यूनिवर्स में कहते हैं सारी फोर्सेस अट्रैक्टिव होती हैं, फिर भी हमें काम करना पड़ता है। अट्रैक्टिव होते हुए हमसे काम होता है, इसलिए वर्क अपीयर्स नेगेटिव। तो इसलिए फाई क्या हो जाता है, वर्क क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा? नेगेटिव हो जाता है। और ये वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। इसलिए फाई वर्क डिवाइड बाय मास को आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय मास। इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम फाई होती है। लेकिन कब? व्हेन द हाइट इज ग्रेटर देन रेडियस। और हाइट अगर लेस देन रेडियस होगी तो आप पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जी एच, बिकॉज जी इज कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा ये वाला? जब जी कांस्टेंट नहीं होगी। So change of the potential energy is equal to minus m delta phi। और phi और पोटेंशियल एनर्जी का जब ग्राफ बनाओगे है तो डायरेक्टली, लेकिन निगेटिव वाली साइड पे इस कोऑर्डिनेट्स में, और इसका ग्रेडियंट क्या होगा? मास होगा। नेक्स्ट, phi is equal to minus w divided by m। तो w work is fd over m, but this f over m is gravitational field strength। So this is another formula, phi और g का बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिलेशन, phi is equal to minus g d। इट मीन जब भी बेटा g और d का ग्राफ बना होगा उसका एरिया लेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। अब आ जाए बेटा रिजल्टेंट जीडी का ग्राफ बनाते हैं। पहले सिर्फ अकेले का बनाया था और जीरो को टच नहीं करवाया था हमने। अब अर्थ और मून का लेते हैं। इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, this is attracting in this direction, this is attracting this direction, if this is taken positive this must be negative। तो अब बेटा इस साइड पे अंदर पॉजिटिव लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इधर बेटा अंदर यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में।
और ये देखें नीचे डायरेक्टली, बिकॉज दिस इज अट्रैक्टिंग दिस अट्रैक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। और ये मास ज्यादा, तो जी की वैल्यू ज्यादा, इसकी हाइट ज्यादा, इसकी हाइट कम। अब यहां कहीं बेटा एक पॉइंट होगा, जब अर्थ इधर ट्रैक करती है, मून इधर ट्रैक करता है, तो रिजल्टेंट जी कितनी हो जाती है? जीरो। दैट्स व्हाई दिस इज द पॉइंट वेयर द जी इज जीरो। और आपने इसको करते करते जीरो करना। रिजल्टेंट जी का ग्राफ जो है आप जीरो कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्लैनेट का जी डी का ग्राफ बाहर जीरो नहीं कर सकते। और इसका एरिया 5 है। नेक्स्ट, now this F force is the gravitational force. So gravitational force Newton second law G m over d square into d over m cancel, d cancel। तो ये phi का एक ये फॉर्मूला भी होगा बेटा, माइनस जी एम ओवर डी। और अगर सरफेस पे निकाल रहे हैं तो इस d को बेटा आर पुट कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज measured फ्रॉम द सरफेस। अब अगर फाई और डिस्टेंस का ग्राफ लेंगे, इनवर्सली हैं, लेकिन नेगेटिव वाली साइड पे होंगे बेटा। और ये रेडियस के ऊपर आपके पास मैक्सिमम, और ये ऐसे। और इसका एरिया क्या होगा बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ जीएम। और अगर इसका आप देखें, ग्रेडियंट लेंगे फाई डिवाइड बाई डी, तो वो स्मॉल जी आएगा। और जी इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ फाई डी ग्राफ। तो अगर वो पूछें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन G एंड phi d ग्राफ, तो आप कहेंगे G इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगेंस्ट डिस्टेंस ग्राफ। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप बनाएंगे बेटा 1/d का, तो यहां से स्टार्ट करेंगे दो तीन डॉटेड लाइंस एंड स्ट्रेट लाइन, और इसका ग्रेडियंट जो होगा आपके पास वो GM होगा बेटा। नेक्स्ट, अब बेटा अगर एयर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस मीन नो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज को इक्वल ले सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट बहुत बड़ी हो बेटा, तो एम फाई की इक्वल एम डेल्टा फाई। और काइनेटिक एनर्जी चेंज हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। एम कैंसिल करें तो ये इक्वेशन आपके पास राइट है। और ये कब वैलिड है? व्हेन हाइट इज ग्रेटर देन आर। लेकिन अगर हाइट लेस देन आर होगी, तो आप काइनेमेटिक्स की ये सिंपल इक्वेशन 2s भी लगा सकते हो। लेकिन ये कब लगानी है? व्हेन हाइट इज ग्रेटर देन रेडियस, मीन जी इज नॉट कांस्टेंट। आप जरा चेक करें बेटा, दिस इज द प्लैनेट अर्थ, इसकी सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फाई इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। आप इसको ऊपर लिफ्ट करते हैं बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। लेकिन करते करते जब आप इंफिनिटी पे लेके जाएंगे, पोटेंशियल जीरो। तो आप इक्वेशन वही वाली लगाएं, बी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम डेल्टा फाई। यहाँ टॉप पे जाके फाइनल स्पीड जीरो। ओके, इसको जीरो पुट कर देते हैं बेटा। दिस यू स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड एट दिस, इसको लिफ्ट करने के लिए, +2 डेल्टा फाई, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डेल्टा फाई। तो इस पॉइंट पे तो है बेटा माइनस जी ओवर आर, और उस पॉइंट पे जीरो। तो ये इक्वेशन बनेगी, माइनस कैंसिल करें। सो दिस इज द फॉर्मूला you require to escape the object from the gravity of the planet. It is called escape velocity. U escaping velocity 2 gm over r under root। अब अगर बेटा प्लैनेट अर्थ हो,
तो उसका डाटा पुट करेंगे 2 g की वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये आंसर आएंगे बेटा। इट मीन अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकेंगे, वो एस्केप कर जाएगा। इट विल नेवर कम अगेन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हर प्लैनेट की अपनी फिक्स्ड होती है। अब बेटा ऑर्बिट में है, एनर्जी है वहां पे, काइनेटिक एनर्जी वी हैव डन ऑलरेडी। पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ा था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -m5। तो पोटेंशियल एनर्जी करें और इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, तो ये टोटल एनर्जी बनेगी। ऐड करने से बेटा ये एक्सप्रेस कर, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी इन द ऑर्बिट। और जब ग्राफ बनाएंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ एंड टोटल एनर्जी ग्राफ, तो इकट्ठा देखें तो ऐसा होगा बेटा। और किसी भी पॉइंट पे ये डिस्टेंस है, इस पे काइनेटिक एनर्जी लें और इसी पॉइंट पे बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी लें, जब दोनों को ऐड करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट द टोटल एनर्जी। और इन एनर्जीज के ग्राफ का ग्रेडियंट लेंगे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और यहां से ये पता चला कि अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, मीन रेडियस इंक्रीज करेंगे ऑर्बिट का, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्पीड कम होगी, लेकिन पोटेंशियल और टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगी। उसके बाद बेटा, अगर आप किसी सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज करते हैं, तो एक ऑर्बिट के अंदर यूजुअली एज ऑफ द सैटेलाइट जो है 5 to 6 ईयर रखी जाती है, फिर इसका ऑर्बिट शिफ्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बेटा इस ऑर्बिट से R1 से R2 करते हैं या R2 से R1 में कर देते हैं, हम ऑर्बिट 1 में हैं सपोज, तो काइनेटिक एनर्जी ये होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। इफ सेम सैटेलाइट इज शिफ्टेड टू R2, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। आप एनर्जीज चेंज कैलकुलेट करें, सेल सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, एक में से दूसरी निकाल लें। देखिए दिस माइनस दिस, और कॉमन निकाला, Gmm/2 1/R2 minus 1/R1। So this is actually the change in kinetic energy। अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकाल लें, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, सो -Gm/R2 माइनस माइनस दिस, ये निकालें, आंसर ये आ गया। ना लुक एट द सिमिलैरिटी, इसमें भी GMM है, इसमें भी GMM है, इसमें भी ये ब्रैकेट के अंदर सब कुछ है, फर्क सिर्फ 2 का है। इस मीन ये जो सारा ऊपर लिखा हुआ है एक्सेप्ट टू, दिस इज सिमिलर टू दिस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज इज हाफ ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने जो डेरिवेशन की थी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लुक एट दिस वन। तो ये कब हो सकता है बेटा? In the absence of the air resistance, mean no atmospheric friction. लेकिन practically it's not possible. Practically, half of the potential energy is converted into kinetic, और बाकी हाफ जो आपके पास है वो जाया होती है। तो इसका मतलब है आधी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक बनती है, बाकी हाफ जो है वो तो लॉस हो जाता है। तो एनर्जी का लॉस तो हीट में होता है। और हीट क्यों प्रोड्यूस हुई? एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से। और एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से क्यों हुई? क्या था? क्योंकि याद रखें बेटा, स्पेस के अंदर डस्ट भी है, गैसेस भी हैं, जब सैटेलाइट उनको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी लॉस होती है।
कॉमेट्स, मीटराइट्स, बेस्ट एग्जांपल आपके सामने। अब उसके बाद बेटा, जब भी आपने सैटेलाइट लॉन्च करना होता है ऑर्बिट में, तो हमेशा अर्थ की डायरेक्शन ऑफ द मोशन में लीन करके करते हैं, स्ट्रेट अप नहीं करते। अगर आप स्ट्रेट अप करेंगे तो ये जो लोकेशन जहां पे भेजना है वो लोकेशन जहां पहुंच गई, किसी किसी काम का नहीं। और इसके और भी फायदे होते हैं। आप लीन करके इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द सैटेलाइट करें, सॉरी प्लैनेट करेंगे, तो एनर्जी कम यूज होगी लॉन्च करने में, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, स्टेबल ज्यादा होगा सर्कुलर ऑर्बिट। तो सीधा बिल्कुल नहीं करते, उसको लीन करवा के करते हैं। और उसके बाद बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है ग्रेविटी में, कभी वो सीधा फॉल नहीं करता। हाँ, सीधा कब फॉल कर सकता है, जब आप अपने प्लैनेट को आइसोलेटेड यूनिवर्स करते हैं, आप कहीं इसके अलावा है ही कोई नहीं, तो फिर स्ट्रेट फॉल करेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले सकते हैं नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, कांस्टेंट फोर्स कह सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन फॉल कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली अर्थ इज नॉट आइसोलेटेड, इसकी सराउंडिंग में बहुत भी है, और क्लोजेस्ट तो मून है। इसलिए कभी भी ऑब्जेक्ट फॉल जब करता है स्ट्रेट नहीं करता, वो मून वाली साइड पे लीन करके करता है। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अर्थ इधर खींच रही है, मून इधर खींच रहा है इस साइड से, तो वो इधर गिरेगी। उसके बाद बेटा वेरिएंट फील्ड होगी, क्योंकि मून भी रोटेट कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रही है। और कर्व्ड पाथ होगा, इलिप्टिकल फॉल होगा, ये टेढ़ा आएगा। और जो आपने स्पीड यहाँ हिटिंग की निकाली हुई है इक्वेशन लगा के, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, वो टोटली गलत है। उससे डिफरेंट आंसर आएगा, बड़ा आंसर आएगा। ये फाइनल स्पीड जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड द आइसोलेटेड सिचुएशन। और इस चैप्टर के अंदर बेटा, जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है, आपको ये assumptions करनी पड़ेंगी। मास कंसंट्रेटेड एट द सेंटर है, परफेक्ट सफेयर है, पॉइंट मैसेज हैं, एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो इन न्यूमेरिकल्स के लिए ये आपको बेटा 4 assumptions करके करनी है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं बताएं इनके बैक पे assumptions क्या है। जी, तो आज के लिए इतना बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। ठीक है, तो अगले 2 चैप्टर अगली क्लास में जी।